Hello everyone, we'll start with p block elements. Now what are p block elements? When the last differentiating electron enters into p subshell, then they're called as p block element. Now we have already done group 13, 14 and 15 in 11th standard. Now in 12th standard we have to do group 16, 17 and 18. Okay, so we'll be doing 3 more groups in 12th standard, group 16, 17 and 18. So we'll do first group 16. What are group 16 elements? Okay, group 16 elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium. Okay. And for notes, what we'll do is I'll send you notes separately, but you'll take down the screenshots of these notes and you can either write it down or you can mark in the textbook whatever is important from here. Okay. So you can take screenshots as I finish the slide. Now name the group 16 elements. So you have to repeat with me: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium. Okay, so these are the elements present in group 16. So repeat once: oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium. Okay, so these are the elements of group 16. Now see, okay, now group 16 elements, the first 4 elements are also called as chalcogen. Now they are called chalcogen means ore forming. Now as they are present in majority of ores, so these elements are also called as chalcogen. Okay, and in p block these elements are present in group 16. So we are doing group 16 elements. So note down this. First you write down the names of this element. चलो इसका एक screenshot ले लो. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, and livermorium. Okay. Now take the second screenshot. That first 4 elements are also called as chalcogen. Chalcogen means ore forming. Now this question can be asked in NEET JEE also. Y'all can hear me, others can hear me, Aisha cannot hear me. What about others? Everybody can hear me? Yeah, okay. Aisha, reconnect yourself. Yeah. Okay. So now take a second screenshot. They can ask you which of these elements is chalcogen. NEET JEE question or in HSC MCQs. So you have to remember oxygen, sulfur, selenium and tellurium. These first 4 elements are called chalcogen. Polonium and livermorium are radioactive elements. Okay. So only the first 4 elements are called chalcogen. So you have to remember that. So in MCQ, you have to mark any one of this, not this 2. Okay. Chalo, next we'll do is occurrence. Now see, again, remember all these things are very important in MCQ. That oxygen is the most abundant element of all the elements on the earth. So the most abundant element on the earth, pucha.
तो ऑक्सीजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन लिविंग वर्ल्ड पूछा तो कार्बन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन एयर पूछा तो नाइट्रोजन मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स पूछा तो हाइड्रोजन. I'll repeat. Most abundant of all the elements on earth पूछा तो answer is oxygen. Most abundant element in the living world पूछा तो carbon. Most abundant element in atmosphere पूछा air. Atmosphere तो nitrogen. और मोस्ट abundant element in universe पूछा तो हाइड्रोजन. इज इट क्लियर? ओके, अभी देखो ऑक्सीजन मेक्स 20% by volume of air atmosphere and 23% by mass. So volume wise it is 20.9% and mass wise it is 23%. So volume percentage and mass percentage, you all know what is solution colligative you all have done. Volume is volume of solute upon volume of solution into 100 and mass is mass of solute upon mass of solution into 100. ठीक है, तो वॉल्यूम वाइज 20.9 है और मास वाइज 23% है. इज इट क्लियर? चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, मोस्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आता है? तो फोटोसिंथेसिस से. हाँ, ये भी आ सकता है शिफा, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैंने बोला ये सबके स्क्रीनशॉट लो और अलग से नोट्स बना लो. अभी लिखने जाओगे तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं. So you keep on taking screenshots of all this, whatever I tell you all. So you all have to make it notes on your own, okay? Oxygen is the most abundant element of the earth. By volume it is 20.9%. By mass it is 23%. Oxygen comes in the environment or in the atmosphere by the process of photosynthesis. Okay, chalo next. Now see, oxygen makes 46% by mass of the earth crust. अभी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कैसे प्रेजेंट है? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रॉक्स, सिलिका, SiO2. तो अर्थ का जो क्रस्ट है हमको मालूम है रॉक्स और सैंड से बना हुआ है, तो उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है. सो 46.6% बाय मास अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन से बना हुआ है. अभी देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, सल्फर इज द 16th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट. तो ये भी आ सकता है एमसीक्यू में, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन. सो सल्फर इज द 16th अबेंडेंट एलिमेंट और परसेंटेज वाइज 0.034% है बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ओके, नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंड सल्फर occurs widely in the form of oxide, सल्फाइड्स एंड सल्फेट्स. और ये सब ज्यादातर मिनरल्स, ओर्स में होता है और इसीलिए इनको कैल्कोजन बुलाते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन दी ओर्स. ओके, they are present in all the ores and that is why they are called chalcogen. Then I told you polonium and livermorium are radioactive elements and we don't know much about them, so hardly we'll study about them in detail. Okay, but you have to remember that they are radioactive in nature. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Now next, order of filling orbitals.
अब जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, ये सिर्फ उनके लिए है। पहले एक पिरामिड बनाना है अब्बाउ रूल के हिसाब से, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s। फिर 2p से शुरू करना है, 2p 3p 4p 5p 6p और 7p। फिर d एक कम कर देना है और फिर f। ओके, और फिर यहाँ है ना नीचे से लाइंस ड्रॉ करने हैं। देखो मैं कैसे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे कट करते जाओ 1, फिर ये पैरेलल लाइन, पहली लाइन किया ना उसको पैरेलल ड्रॉ करते जाना है ऐसे, यू टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के बाद इनका ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिट भरेगा, 1s, फिर भरेगा 2s, फिर 2p। देखो 1s 2s 2p, ऐसे जाना है, 1s फिर 2s, ये 2s खत्म हो गया, फिर ऊपर आओ 2p फिर 3s, 3s खत्म हो गया तो फिर 3p फिर 4s, 3d 4p 5s, देन गो 4d 5p 6s, ऐसे जाते जाना है। इज इट क्लियर? यू गो ऑन फिलिंग दिस ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ऐसे पूरा ऑर्डर मिल जाएगा। फिर ये एक तो ये पिरामिड मालूम होना चाहिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ दिस पिरामिड। और फिर ये कैपेसिटी याद रखनी है, एस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरना है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। सो दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी यू शुड नो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखना है। तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Those who don't know how to write electronic configuration, just take one screenshot of this. ओके, चलो अभी आगे देखो। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। अभी ग्रुप 16 में आई टोल्ड यू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है O, एटॉमिक नंबर है 8। अभी देखो यहाँ पे मैंने ऊपर ऑर्डर लिखा है, अभी 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो S में कितने भरोगे, 2, 2s में कितने भरोगे, 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। अभी 2p की कैपेसिटी, p की कैपेसिटी 6 होती है और हमको और 4 ही भरने हैं, तो यहाँ पे 4 के 4 भर दो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, s में 2, यहाँ पे भी s में 2, फिर p में 4, सो टोटल बिकम्स 8। अभी इसको एब्रीवेट कर सकते हैं, ये हीलियम क्या है, इनर्ट गैस, तो हीलियम इनर्ट गैस लिख दिया 2s2 2p4। अभी सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16। अभी हमको 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पहले s में 2, फिर s में 2, p में 6, s में 2, तो टोटल हो जाएंगे 10, 10 + 2 12, 12 और 4 इसमें भरोगे 3p में, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ऐसे ऐड करते जाना है, टोटल 16 होने चाहिए। s की कैपेसिटी 2 है, p की कैपेसिटी 6 है, d की 10 और f की 14। ठीक है, अब ये जो ब्लैक में है वो है नियॉन, तो यहाँ पे लिखोगे नियॉन 3s2 3p4। फिर सेलेनियम 34, so you'll go on increasing like this, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। अभी ये 3p6 तक ये पूरा है आर्गॉन, और ये 3d10 आर्गॉन और 3d10, फिर 4s2 4p4 टेलुरियम 52, ये पूरा 4p6 तक है क्रिप्टॉन, और फिर 4d10 5s2 5p4, फिर पोलोनियम। ठीक है, लिवर्मोनियम का इतना डिटेल में नहीं आएगा बिकॉज
It is artificially synthetic made element and still we don't know much about its property. तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं पूछेंगे. यहाँ पे 4f14 5d10 6s2 6p4. अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. गिव जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. तो क्या हो जाएगा बताओ. व्हाट इज जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. हाँ उसना करेक्ट. जेन इनकरेक्ट है. मारिया करेक्ट. ऋषभ करेक्ट. दक्षित करेक्ट. आलिया करेक्ट. जीत तुमको अगर आंसर देना है तो चैट बॉक्स में आंसर मैसेजेस करो. ठीक है. NS2NP4 वेरी गुड. मृणाली. अर्शद. So general outer electronic configuration of group 16 element is NS2NP4. Chalo, take one screenshot of this slide, then we go further. So general electronic configuration of group 16 element is NS2NP4. S में 2 और P में 4. Okay. अभी question आएगा. What is valence electron of group 16 elements? 16 एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं. अर्शद इनकरेक्ट. ऋषभ इनकरेक्ट. शादाब इनकरेक्ट. मारिया करेक्ट. शिफा इनकरेक्ट. अमृता करेक्ट. शिफा स्टिल इनकरेक्ट. उसना करेक्ट. दक्षित इनकरेक्ट. मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऋषभ करेक्ट. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल. मृणाली शिफा आयशा करेक्ट नाउ. हाँ शादाब करेक्ट नाउ. 6 इलेक्ट्रॉन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल. या दक्षित करेक्ट नाउ. ओके. तो जो आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं. ठीक है ना. सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन. इनर्ट गैसेस हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. So number of electron present in the outermost shell are called valence. Okay. Okay. Chalo, you all have taken screenshot. Now we'll go further. Chalo, be a first MCQ. The most abundant element in the earth crust. हाँ. Zen Maria correct. शिफा शादाब अमृता मृणाली उसना करेक्ट. यश इनकरेक्ट. यश अभी सिखाया बेटा. नेथन इनकरेक्ट है. मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. इनमें से मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट कौन सा है. हाँ ऑक्सीजन. हम लोग ने अभी तो लर्न किया. मैंने बोला ना सिलिकॉन सिलिका सैंड रॉक्स सब में कैसा होता है SiO2. ओके. तो ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप 16 एलिमेंट. इनमें से ग्रुप 16 का कौन सा एलिमेंट है. नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक और पोलोनियम. हाँ चलो करेक्ट है. हाँ ग्रुप 16 एलिमेंट्स के नाम बताओ. एक बार अपने आप में जोर से बोलो. ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम एंड लिवर्मोनियम.
एक बार रिपीट करो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवर्मोनियम। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा पोलोनियम एंड ऑल ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट वन। The characteristic electronic configuration of group 16 element, group 16 का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? या हाँ, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी नाइस। NS2NP4, it has 6 valence electron. ओके, चलो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स करेंगे। फिजिकल स्टेट, अभी देखो फिजिकल स्टेट में ऑक्सीजन इज गैस, ऑक्सीजन एक गैस है, while others are solid. So you have to remember oxygen is diatomic gas and others are solid. उसमें सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम ऑक्टा एटॉमिक है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ओके, एंड पोलोनियम मोनो एटॉमिक है, रेडियो एक्टिव है। सो ऑक्सीजन डायटोमिक है विथ 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ऑक्सीजन इज गैस, others are solid. Okay, or this is because oxygen exists as diatomic molecule due to its ability to form multiple bond. तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी सब मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते। सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, बट दे आर 8 मेंबर्ड रिंग, और वो रिंग को हम पकड़ रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अभी बताता हूं पकड़ रिंग कैसे होता है, क्राउन शेप। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लिया। अभी देखो ये क्राउन शेप है, पकड़ रिंग। 2 W को ज्वाइन कर देना है ड्रॉ करते वक्त। एक W ड्रॉ करो, फिर दूसरा W ड्रॉ करो और दोनों को ज्वाइन कर दो, है ना। फिर अगर सल्फर 6 हुआ तो ये चेयर फॉर्म, है ना। पर ये वाला पकड़ रिंग, ये रोम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर होता है और ये ज्यादा है नेचर में। ये S6 चेयर फॉर्म है। ओके, नाउ सी योर नेक्स्ट वन। हाँ, tendency to exist in 8 atom ring is greater with sulfur, and down the group it decreases. Special ability of 8 membered ring of sulfur is due to sp3 hybridization. तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। इन पकड़ रिंग व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर? सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इज sp3। अभी यहाँ पे जो एमसीक्यू बता रहा हूं वो HSC में भी आ सकते हैं। HSC में वी हैव समवेयर अराउंड 10 मार्क्स MCQs, छोटे छोटे 1 मार्क क्वेश्चन वैसा भी है, तो उसमें ऐसे सब क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर एटम, बोथ बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, above 1000 degree sulfur exists only as a diatomic molecule. Okay, which has a structure like oxygen, but only above 1000 degree it exists like this. Okay, metallic and non-metallic character. Oxygen and sulfur are non-metallic. Selenium and tellurium are metalloids. Polonium is a metallic and radioactive element. Okay, so down the group what is happening? Metallic character is non-metallic character is decreasing and metallic character is increasing.
चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एटॉमिक रेडियस। चलो डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, as we go down the group, what will happen to atomic radius? It goes on increasing. Zen correct, Rishabh correct. What is the reason why atomic radius increases in group 16 element? As we go down the group, atomic radius increases because, very good Shadab, the number of shells increases. Yeah, Nathan, very good. But if we go from left to right, yeah, what will happen if you go from left to right in periodic table? When we go from left to right, atomic radius decreases. Okay? Yeah, very good. Everybody is correct. तो यहाँ पे देखो दिखा है, group 16 elements have a smaller atomic radius than 15 because nuclear charge increases. But down the group as we go, number of shell increases down the group and thus atomic radius increases down the group. ठीक है? Yeah, so left to right decreases, but down the group atomic radius increases. Oxygen is the smallest atom and polonium has the largest atomic size. So atomic radius का order ये है. हाँ चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका. Atomic radius, oxygen is smaller and polonium has the largest atomic radius. Okay, further now. देखो ये ऐसे डायग्राम वाइज दिखाया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, सी नंबर ऑफ शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग. पहले 2 शेल, फिर 3 शेल, 4 शेल. समझ आ रहा है ना? सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस. ओके, हाँ, if you want you all can take a screenshot of this also. So down the group number of shell increases, atomic radius increases. Next one, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी. चलो किसी को मालूम है इसका डेफिनेशन? व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी, everything is same, all three are same. I'll repeat, ionization energy, ionization potential or ionization enthalpy. Very good. Rishabh, correct. Yeah, correct. Zen, correct. Okay, it is energy required to remove most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. Okay, so that is called as ionization enthalpy. Now what will happen to ionization enthalpy in group 16 elements? Down the group, what will happen to ionization enthalpy down the group? Very good Rishabh, very good Amrita. Maria, Mrunali, correct. Aisha, Himani, correct, very good. Alia. Down the group, ionization enthalpy decreases as the atomic number increases and size increases. Okay, so ionization energy value decreases as atomic number and atomic size increases. ये ionization enthalpy का order है. Ionization enthalpy of group 16 are relatively low compared to adjacent group 15 group. Okay, चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो.
आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर देखो, ये सब ऐसे ऑर्डर्स आएंगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो सब कंपेयर करके अच्छे से लिखना है बस, समराइज देम वेल। जब नोट्स बनाओगे तो एक तरह से सबके ऑर्डर लिखो, एटॉमिक रेडियस, अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखा है हमने। ओके, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए देखो डेफिनेशन ये रहा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। ये रहा डेफिनेशन शादाब, यहाँ पे लिखा है देखो, ऑफ एन एटम इन अ गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट, डेफिनेशन जिसको नहीं मालूम। ओके, नाउ ये डायग्राम वाइज, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन निकालना और इजी हो जाएगा। सो एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस because electron can be easily removed. Is it clear? Okay, now down the group, atomic number increases, nucleus size increases, atomic size increases, but ionization energy decreases. Okay, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सब लॉग आउट करके लॉग इन करो फिर से एक बार। ओके, लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन एवरीबडी।